পলিটিক্যালি লড়ো কল্যাণকে, পলিটিক্যালি লড়ো সাজ্জা আহমেদকে, পলিটিক্যালি লড়ো আমার বীর বাহাদুর টুডু সোরেনকে, পলিটিক্যালি লড়ো আমার বীরবাহা হাসদাকে, পলিটিক্যালি লড়ো আমাদের মমতাবালা ঠাকুরকে। পলিটিক্যালি লড়তে পারছো না? একটা ছোট্ট ইঁদুর বের করেছো ব্যাগ থেকে, পকেট থেকে একটা ছোট্ট নেংটি ইঁদুর বের ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছো। ওই নেংটি ইঁদুরটা যে তোমার পকেট কেটে দিয়েছে তুমি সেটা দেখোনি? তোমার পকেটটা তো ততক্ষণে কেটে দিয়েছে। তুমি কেন বুঝতে পারছো না? তুমি একটা ইডি দেখাবে, আমি ওই ইডির কাছে আমি বস্তা ভরে কাগজ পাঠাবো। তো আমি দেখতে চাই যদি কেস না হয় পরীক্ষা, তাহলে আমরাও কোর্টে যাব। তুমি সব ম্যানেজ করবে। মনে রেখো, সব ম্যানেজ করা অত সহজ নয়। সবটাই তো ম্যানেজ করে বসে আছো, দেশটাকে ড্যামেজ করে। মনে রেখে দিও, আজও পৃথিবীর কিছু কিছু লোক আছে যারা ভয় পায় না, কথা বলতে পারে। কাজেই নিজেকে ঠিক করে রেখো। গুজরাটের কম ইতিহাস আমরা জানি না। মনে রেখে দিও, সব কিছু মনে রেখো, মনে তারপরে কাজ করো। রাজনীতি রাজনীতির জন্য, রাজনীতি প্রতিহিংসার জন্য নয়। তোমরা যদি মনে করো রাজনীতি করে রাজনীতি করবে সৌজন্যতা দেখিয়ে, রাজনীতি সৌজন্যতা রাজনীতি। আমি জীবনে এত ভিন্ডিকটিভ প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি, আমি ছোট্টবেলা থেকে রাজনীতি করি, আমার 12-13 বছর বয়স থেকে আমি এরকম দেখিনি। हमने कभी नहीं देखा इतना भिंडिक्टिव पॉलिटिक्स। मैं भी 12-13 साल से, मेरे को पिताजी ने फ्रीडम फाइटर थे, हम उसको उसका सब बात सुन के हम पॉलिटिक्स किया है। मैंने नेताजी को आदर्शों पर विश्वास करती हूँ, विवेकानंद को आदर्शों को विश्वास करती हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विश्वास करती हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर को विश्वास करती हूँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद को विश्वास करती हूँ, लाल बाल पाल से शिक्षा लेती हूँ। हमेशा राजनीति कभी नहीं करते हैं कि जिसको तुम पॉलिटिकली नहीं लड़ सकते हो उसका खिलाफ में तुम ईडी सीबीआई दिखाते हो। और तुम्हारा पार्टी का खिलाफ में कितना है, कितना सीबीआई किया, कितना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को तुम यूपी में भेजा, जब हाथरस हुआ भेजा, कितना सीबीआई भेजा, कितना ह्यूमन राइट्स कमीशन भेजा। अरे हमारा इधर में पोस्ट पोल वायलेंस में 5 बीजेपी का वर्कर का डेथ हुआ है, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का रिपोर्ट में बोला है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का रिपोर्ट में बोला है, लेकिन उसमें 16 तृणमूल कांग्रेस है। तो तुम 5 को भेज दिया, इधर उधर जाके झगड़ा करते हैं। हमको सीबीआई से कोई इतराज नहीं है, लेकिन बीजेपी को लीडर को लेके क्यों गांव में जाएगा गड़बड़ करने के लिए, झगड़ा करने के लिए। लेट देम वर्क इम्पार्शियली, लेट देम वर्क एज पर देयर रूल्स, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन खाली बंगाल के लिए, त्रिपुरा के लिए क्यों नहीं है? हर रोज हमारा महिला को मारते हैं, डंडा देके खून निकालते हैं। हर रोज हमारा पुलिस सिक्योरिटी जो एमपी का साथ दिया उसको भी डंडा मार के खून निकाला, एक टिटेनस इंजेक्शन भी नहीं दिया। प्रतिदिन त्रिपुराয় মারছেন, প্রতিদিন আসামে মেরেছেন। এনআরসি নিয়ে আন্দোলন হচ্ছিল আসামে, আমি আন্দোলন করছিলাম, আমাদের এমপিদের আপনারা আসামে ঢুকতে দেননি, মনে রাখবেন। হাতরাস নিয়ে আমি এমপি টিম পাঠিয়েছিলাম, আপনারা ঢুকতে দেননি, মনে রাখবেন। আর আপনার ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন থেকে শুরু করে যতগুলো সব কমিশনগুলোকে পলিটিক্যাল বানিয়ে দিয়েছেন, আর সব কটা বিজেপির মেম্বার। আই এম সরি টু সে, আমার দেখান আমার এখানে একটাও তৃণমূলের মেম্বার আছে কিনা হিউম্যান রাইটস কমিশনে। আর আপনাকে আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, যে লোকটা কোর্টে রিপোর্ট সাবমিট করেছে, হি ইজ এ বিজেপি ম্যান। তার রিপোর্টের ভিত্তিতে আপনি শিখিয়ে দিচ্ছেন সিবিআই হবে, ইডি হবে। করুন আপনি এনকোয়ারি, ইনভেস্টিগেশন করে দেখুন, আমার কোনো তাতে বাধা নেই। তার কারণ আমাদের প্রত্যেকটা চার্জশিটেড হয়ে গেছে, প্রত্যেকটা কেসে অ্যাকশন হয়েছে। আমি যখন গভর্নেন্স চালাই, দেন আই এম ফর অল, আই এম নট লাইক বিজেপি দ্যাট অনলি বিজেপি উইল লুক আফটার দেয়ার ইন্টারেস্ট অ্যান্ড নো আদার ইন্টারেস্ট। আই অ্যারেস্ট মাই তৃণমূল কংগ্রেস পিপুল অলসো ইফ দে ডू एनी ब्लंडर। प्लीज रिमेंबर दिस। क्या सोचते हैं आप लोग, पोटैटो और पोटैटो चिप्स एक हो गया है? भाई हमारा हिम्मत है लड़ने के लिए, इसी के लिए
कि जिंदगी से सब जब शुरू किया है, हम गलती नहीं करने का कोशिश किया है जानबूझ के। अगर बिना जानबूझ के कोई गलती हो गया तो माफी भी चाहने के लिए हम तैयार है, लेकिन हम जानबूझ के कभी गलती नहीं किया, करते भी नहीं, हमारा जरूरत नहीं है। हम जो पुस्तक लिखता है, हमारा 100 से ज्यादा पुस्तक निकल गया, उसमें जो मिलता है हमारा, उसमें हमको चला जाता है। आपका पता नहीं है तो ढूंढ लीजिए। हम भी 1 लाख रुपया करके पार्लियामेंट से ये 10 साल हम पेंशन पे मिलते थे मेरे को। सबको जानना चाहिए, बहुत सारे आदमी को पता नहीं है कि 1 लाख रुपया करके मंथली हमको पेंशन मिलता पार्लियामेंट से। आई वॉज द 7 टर्म एमपीज, चीफ मिनिस्टर होके भी हमारा 1 लाख से ज्यादा सैलरी मिलते और सब कुछ मिलते, हम 1 पैसा भी नहीं लेते। तो अगर सब महीना में हम 2-2.5 लाख छोड़ देते तो साल में कितना रुपया हम गवर्नमेंट को सेव करता है। और आप लोगों ने अंगुली उठाता है मेरे को ऊपर में, आप अंगुली उठाता है हमारा फैमिली के ऊपर में। पार्टी करने से हर आदमी को चांदा लेने पड़ता है, हम तो चाहते हैं नहीं लेना चाहिए। इसी के लिए इलेक्शन कमीशन को रुपया दे दो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करो और इलेक्शन कमीशन को बोलो उन्होंने इलेक्शन चलाए। हम पॉलिटिकल पार्टी खाली भाषण देंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी भाषण देंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी चलाएंगे, लेकिन इलेक्शन चलाएंगे इलेक्शन कमीशन, तो चांदा लेने का कोई जरूरत नहीं है। किसी के पास चांदा मांगने से मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को शर्म लगता। लेकिन आप लोगों का 1000 करोड़ बॉन्ड में आया कैसे? ईडी करा दो, हम ईडी करके देखने चाहते हैं कैसे आपको आया। आपको पीएम केयर्स में कितना रुपया आया, कैसे कैसे आया? ईडी करा दो, हम देख नहीं सकता है। पब्लिक को बोलो, आप भिस्ता इतना बड़ा पूरा एरिया जुड़ के बनाते हैं, कितना हजार करोड़ रुपया का, और रुपया कैसे आया हम जानने चाहता है। आज कोविड वैक्सीन का रुपया नहीं है, कोविड शील्ड का रुपया नहीं है। जो कोविड वैक्सीन लिया है वो बेचारा तो बाहर में भी नहीं जा सकता है, उसको ऑथेंटिसिटी भी नहीं किया है। आपको करना नहीं चाहिए। हमारा स्टूडेंट लोग जाने नहीं सकता है बाहर में, इंडस्ट्रियल लोग जाने नहीं सकता है। सब इंडस्ट्री को बुला के कभी मैंने नहीं देखा कि गवर्नर इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला लेता है और नेगोशिएट करते हैं। ये तो कभी नहीं हुआ, बहुत जगह में ऐसा हो रहा है, ढूंढ के लीजिए। उसमें क्वेश्चन नहीं होता, खाली क्वेश्चन तृणमूल कांग्रेस का बारे में होता, लालू प्रसाद यादव के बारे में होता। अगर लालू प्रसाद यादव कुछ भी किया है तो कितना दिन जेल में है।